Hello students, how are you all? Today I am going to teach you rest of the poem How Beautiful is the Rain. In video part 1, I have explained you 4 paragraphs. First, second, third and this is fourth. Now we will start our poem from this stanza. Now please see carefully. From the neighboring school come the boys with more than their wonted noise and commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. In these lines, the poet speaks of the small boys from the school who are overjoyed to see the rain, and they run from their classes to the wet streets, making noise and screaming in the excitement. They play in the rain and in the pool of water, which is mixed with the water and mud and dirt. But after that, they don't care of that and fall into it. सो बच्चों, यहाँ पर पोइट यही कह रहा है कि फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज. वांटेड, first of all, please write down meaning of difficult words first. Wanted means here habitual, and the commotion means sudden noise. Written. Now next is fleet. Write down the meaning of fleet. Fleet is group of ships sailing together. Now next is trunch. Write down treacherous. Treacherous means dangerous here. Next is whirling. Whirling means spinning round and round. And the turbulent means disturbing commotion. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि जो पास में ही एक स्कूल है, वहां से बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं और अपनी जो डेली रूटीन में जो जितनी नॉइज करते हैं उससे भी ज्यादा सडन नॉइज कर रहे हैं. वो बाहर रेन को देखकर इतने ओवरजॉयड हो रहे हैं और वेट स्ट्रीट्स की तरफ, यानी कि गीली जो स्ट्रीट्स हो चुकी हैं रेन से, उनकी तरफ भाग रहे हैं. एंड सेल देयर मिमिक फ्लीट्स. यहाँ पर मिमिक का मतलब होता है वैसे नकल करना, लेकिन यहाँ पर पोएट ने इसका मतलब बताया है कि जो फ्लीट्स हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ शिप है, वो किससे बनाया है उन्होंने. जो अपनी नाव बनाई है कागज से, अपनी नोटबुक में से पेज निकालकर, और वो वहां पर फ्लीट्स यानी कि शिप बना रहे हैं. अब शायद जब रेन होती है तो आप लोगों ने भी, कई बच्चों ने ऐसे नाव बना के और रेन में जो गड्ढे होते हैं, जो पिट्स होते हैं, उनमें तैराई होंगी. तो यहाँ पोइट्स भी वो बच्चों को के लिए ऐसे ही डिस्क्रिप्शन दे रहा है. टिल द ट्रेचरस पूल engulf them in its whirling and turbulent ocean. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो जो नाव है वो उस पूल में, जो डेंजरस पूल बन गया है वहां पर, वो उसमें गोल 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 घूमते हुए, और जो टर्बुलेंट ओशन है, जो बहुत तेजी से बहता हुआ ओशन है, टर्बुलेंट मतलब डिस्टर्ब्ड ओशन है, जो उसमें वो सारी उसको निगल गया है. Now next paragraph is, in the country on the every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain, how welcome is the rain. So in these lines, Longfellow speaks about how the heat of the summer had dried every kind of vegetation around the field, and turned yellow. That vegetation turned yellow due to the dryness. He says that the entire field resembles like a suitable place for the hideout of the leopard, and just like a leopard, and it's yellow and spotted like its fur, and stretches and spotted like its fur,
all over the plain, and the dried land is overjoyed too in the arrival of the rain. So, dear students, now first look at the difficult words. First is tawny. Tawny means here means brownish yellow in color. Brownish yellow in color. And here hide means here the meaning of hide is two. Two meanings are there. First hide means छुपना, hide करना, and the second hide means here skin, खाल को भी कहते हैं. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है बच्चों कि कंट्री इन द कंट्री ऑन एवरी साइड. अब यहाँ पर जो कंट्री का मतलब विलेज से है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर भी डबल मीनिंग है कंट्री का. तो वो कह रहे हैं कि विलेज के पास में जो पूरा प्लेन दिख रहा है, जो मैदान दिख रहे हैं दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक चौड़े चौड़े मैदान दिख रहे हैं, वो इतने ड्राइड हो गए. लाइक अ लेपर्ड स्टोनी एंड स्पॉटेड हाइट stretches the plain to the dry grass and the drier grain. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा यहाँ पर गर्मी की वजह से सारा घास और सारी ग्रेन जो है, सारी फसल जो है वो सूख चुकी है. मैदान बिल्कुल सूख चुका है और ऐसा हो गया जैसे कि लॉयन लेपर्ड जो होता है, सॉरी लेपर्ड जो होता है उसकी जैसे ब्राउनिश येलो स्किन होती है स्पॉटेड वाली, ऊपर काले काले धब्बे देखे ना आपने, वैसे ही ये एकदम प्लेन जान पड़ रहा है. Now next stanza. In the furrow land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke uncumbered head, with their dilated nostrils spread. They silently inhale the clover-scented gale, and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. So students, in this stanza, Longfellow now is talking about the heat rising from the earth and how the earth smells as a drop of rain falls on it and cools down the hot soil. It cools and calms the entire environment around. Now look at some difficult words. Write down the meaning, please. Furrowed. Write down the meaning of furrowed. Ground with long and narrow lunches made by a plow. Next is toilsome. Toilsome means bitter laborious. And yoke encumbered means, write down yoke encumbered, weighed down by a long piece of wood fastened around the neck. I am repeating, write down the meaning of yoke encumbered, weighed down by a long piece of wood fastened around the neck. Now the next one is dilated. Write the meaning of dilated. It means open wide. Open wide. Now see the meaning of this stanza. Here the poet want to say in the furrowed land. फॉरवर्ड का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जब हल चलता है तो लैंड पे जो लंबी लंबी सी नालियां सी बन जाती हैं ना, उसको फॉरवर्ड कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर अब पोइट कह रहा है कि जो ऑक्सन वहां पर प्लगिंग कर रहे हैं वो बहुत ही लेबोरियस और पेशेंट है. टॉयल्सम मतलब लेबोरियस और पेशेंट मतलब बहुत ही पेशेंस रखने वाले, शांत स्वभाव के होते हैं. वो इतना मेहनत करते हुए भी बहुत शांति से खड़े हुए हैं. एंड लिफ्टेड द यॉक एंड कम्बर्ड हेड, और उनका जो सिर है वो ऊपर कैसे उठा हुआ है, लिफ्टेड हुआ पड़ा है, क्योंकि उनके सिर पर नेक के अराउंड दो जो वुड्स हैं उनको लगा के रखा हुआ है. आपने देखा होगा जब हल चलाते हैं तो जो ऑक्सिन्स होते हैं उनके नेक पे वो लगाया होता है. विद देयर डायलेटेड नोस्ट्रिल स्प्रेड. अब यहाँ पर डायलेटेड ओपन वाइड, यानी कि जो उनकी नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स का मतलब आप जानते हो बेटा, जो नोज में दो होल्स होते हैं ना उसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं. तो वो
ओपन वाइड यानी कि बहुत खुली हुई हैं। दे साइलेंटली इनहेल्ड द क्लोवर सेंटेड गेल। तो अब वो कह रहे हैं कि वो एकदम साइलेंटली खड़े होकर बहुत ही वो जो रेन की जो स्मेल है जब सूखी मिट्टी पे पड़ रही है तो उनको उसको इनहेल कर रहे हैं साइलेंटली खड़े हुए। और उसकी बिल्कुल कैसे है, क्लोवर सेंटेड, क्लोवर सेंटेड मतलब सुख भरा सा जो गेलिंग है वो उनके अंदर जा रही है, सॉइल की जो वेपर्स उड़ रहे हैं। एंड द वेपर सी हेयर एंड द वेपर्स दैट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल। अब यहाँ पर जब आपने देखा होगा सूखी मिट्टी पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर पड़ता है तो वेपर्स थोड़े से उठते हैं, है ना, और वो एक धुआं सा बन के ऊपर को मिट्टी उठने लग जाती है। तो यहाँ पर पोएट ये समझाना चाह रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। फॉर दिस रेस्ट इन द फुरो आफ्टर टॉयल their large and lustrous eyes seem to thank the Lord more than man's spoken word. Now see the meaning of this word lustrous. Lustrous का मतलब होता है बेटा, the meaning of lustrous, write down shining. Shining. So in these lines, poet says that once it had started pouring, everyone seems to look towards the sky and silently thank God for showering his blessings on them. For this rest in the furrow after toil. जैसे पहले भी फरो का मतलब बताया था आपको और टॉयल का मतलब बताया था आपको कि लेबोरियस, और जो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही लस्ट्रस हो रही हैं क्योंकि उनका मुंह ऊपर है, हेड ऊपर बताया है पोएट ने, तो वो ऊपर देख रहे हैं और उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ब्राइट लग रही हैं और वो भगवान को थैंक्स कर रहे हैं, लॉर्ड इवन गॉड को थैंक कर रहे हैं कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल रेन। क्योंकि अब रेन पड़ेगी तो उनको ग्रीनरी होगी तो उन्हें खाने को भी मिलेगा। दैट्स वाई दे आर थैंकिंग द गॉड। एंड सी दिस लाइन, मोर देन मैन स्पोकन वर्ड। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन पोएट हैज रिटन कि मतलब यहाँ पर जो वो मेंशन कर रहे हैं ना अपनी आंखों से, वो आदमी के बोलने से ज्यादा जो है वो यहाँ पर उसे इलस्ट्रेट कर रहा है। जो कौन है, ऑक्सिन्स जो हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन्स बच्चे। Near at hand, from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain. So, in these lines, poets wants to describe the joy of the peasants. Now he is talking about the farmers, peasants. Farmers and peasant both are the same meaning. As they see the rain falling from the sky and their crops and fields are looking very beautiful. They are satisfied to smell the aroma of rain as the pours from the sky. Now see the meaning of this incessant. Incessant means, write down beta, incessant, continuous without pause. Continuous without pause. Written. So see the translation of this lines. Near at hand. Now here the meaning of this line is पास में ही, near at hand, from under the sheltering trees. Now here poet is talking about the peasant or farmer कि जो किसान हैं, farmers हैं, वो एक पेड़ों के नीचे खड़े होकर उस रेन को देख रहे हैं और रेन जो उनके पास्चर्स मतलब होता है बेटा जो ग्रीन चारा खाते हैं ना,
कैटल्स उनको कहते हैं। एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन, अपनी ग्रेन्स को और पास्चर्स को वो ट्रीज के नीचे खड़े होकर देख रहे हैं। एज दे बेंड देयर टॉप्स टू द नंबर लेस बीटिंग ड्रॉप। नाउ यू नो हियर द नंबरलेस बीटिंग मतलब कि जो लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो रही है ना बेटा, जो मैंने आपको मतलब बताया, इंसेंसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस विदाउट पॉज। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसके जो ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पड़ रहे हैं, वो क्रॉप्स के ऊपर पड़ रहे हैं। और उनके जो क्रॉप्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो उनकी वजह से, ड्रॉप्स की वजह से बेंड हो रहे हैं। बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ओके बेटा, नाउ सी नेक्स्ट लाइन्स। ही काउंट्स इट एज नो सिन that he sees therein only his own thrift and gain. तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, now here the poet says that peasant doesn't see any kind of harm or see in being satisfied that the rain has come only for his benefit, but it's the poet's eyes that could see everything and much more and far than this. मीन टू से बच्चों कि यहाँ पर अब पोइट कह रहा है कि वो नीचे झुक रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, सिन नहीं है कि उनको लग रहा हो कि भाई वो नीचे क्यों झुक गए हैं। क्योंकि इस समय थ्रिफ्ट का मतलब, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्ट बेटा। थ्रिफ्ट मीन्स होता है प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि कहते हैं ना हिंदी में, कि आर कंट्री इज प्रॉस्परस कंट्री, दिस टाइप। सो यहाँ पर वो उसको समृद्धि मान रहे हैं कि उनका ये फायदा है, वो नीचे झुक रहे हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है, सिन नहीं है, ये उनका फायदा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर होल दिस पोम. I think you have enjoyed this poem because this poem is very beautifully written by W.H. Longfellow. So dear students, in next assignment I'll provide you some question answers and you have to write down in your notebook and try to learn. Okay beta, see you and take care of yourself and your family. Bye.